आज हम थोड़े से स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक इसलिए हैं क्योंकि बोर्ड की क्लासेस के बारे में प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होती है 5th क्लास, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं उन पर हम बात करेंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 1st क्लास से शुरू होकर 12th क्लास तक चलती है, और जिस तरीके से अपग्रेडेशन होता रहता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि इंग्लिश को आप किस तरीके से लेते हैं। सोफिया के बच्चों के लिए इंग्लिश टिप्स पर होती है, लेकिन बावजूद इसके इंग्लिश को पढ़ने के बाद हमारे सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th क्लास से। बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होती है 5th, क्योंकि 5th के बाद जैसे ही 6th में पहुंचते हैं पूरा सीन बदल जाता है प्राइमरी से सेकेंडरी का। आइए पहले नाम जानते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? I am Mrs. Navita Katyal. I am taking class 5. I am teaching almost all the subjects except for Hindi and computers. जी मैम, अब ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया है। बच्चियां घर पर बैठे, स्टूडेंट्स घर पर बैठे आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप नए मटेरियल के साथ आएँ। तो किस तरीके से बच्चे इंग्लिश की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फॉर 5th क्लास? 5th class is the launching pad for the secondary. 5th class is a very special class because we teach the children to be a little independent, so that when they are going through the lesson they are able to form their own answers, because in 6th class this is what is required of them. So we start with the first unit itself, that we have the first unit, our exams, with the syllabuses of the first unit, and from day one we put it across to them that they have to be little independent now. They have to do independent thinking vis-a-vis the subject, vis-a-vis the topic. मैडम, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से लेसन्स फर्स्ट टर्म में आपने इंक्लूड किए हैं? हमारे लिए काम काफ़ी आसान इसलिए हो गया क्योंकि जो फर्स्ट फ्यू लेसन्स होते हैं दे आर कंपैरेटिवली इजी, बिकॉज द सिलेबस एंड द कंटेंट ऑफ अ बुक इज़ put in such a way, made in such a way that it is in a graded manner. So first few lessons are actually related and connected to the class 4 syllabus. So we are able to proceed smoothly and definitely more faster when we are teaching the first few lessons, because the children are able to relate to it when we connect them with their previous knowledge. मैडम, तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, किस तरीके से सेंटेंसेस बनाएं, किस तरीके से रीडिंग करें, कुछ इस बारे में थोड़ा सा बताइए। ज़रूर। The most, like for example, we have first two lessons in English literature syllabus for unit 1. शायद पहला लेसन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, और अभी जो करंट लेसन चल रहा है वो है एक गोरिल्ला पे है। इट इज़ अबाउट एन एनिमल हु इज केप्ट इन कैप्टिविटी। जी हाँ, मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। इस लेसन का जो गोरिल्ला वाला लेसन है इसको मैंने पढ़ा है, और ये लेसन हमको बताता है कि किस तरीके से एक जंगल का जीवन से वो मॉल के जीवन में जाता है, और फिर वापस कुछ लोग सामने आते हैं जो उसके पूरे दिन की टॉर्चर देखते हैं, वो एक आंदोलन शुरू करते हैं और फिर वापस उसे जू में, यानी कि उसी नेचुरल हैबिटेट में भेजा जाता है। ये बातें हमको बताती हैं कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करें। अब मैम, जी मैम। Yes, you're right. This lesson has a very good what you call message for the humans, for we the humans, that how for a selfish reason, for a selfish pleasures, we take the animals away from their natural habitat, put them in zoos, use them in circuses, and sometimes even cage them. Why? Because we derive pleasure out of it. But has anybody thought about the plight of the animal? Animals are miserable in these conditions. Now coming back to the content of the matter, when we talk about the pros as such, the child, when considering the present circumstances, the child is asked to read the lesson. Thankfully the first few lessons are very easy, so the child can actually read it and understand it. On the same page they have the word meanings. The difficult words are given along with the meanings, they are printed there.
but we want to go a little beyond that in class 5. So what do? There are certain words in the lesson which we feel the child might not be knowing the meaning of, but they are not printed. So the first step that we do is we pick out those words and ask the children to find the meanings from the dictionary. So in the notebook, it is not the word meanings which are printed in the book, which are copied in the notebooks, but the ones which they have found the meaning of by themselves from the dictionary, which are noted down in the notebook. जी हाँ, तो फर्स्ट हमको एक इम्पॉर्टेंट टिप मिल गया. इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको वो वर्ड्स मिलेंगे डिफ़िकल्ट जो उनकी लिस्ट में नहीं है. तो यूज़ ऑफ डिक्शनरी. जी हाँ, अब शुरू हो गया है 5th क्लास से ये सफ़र, 12th तक रहेगा, और जहाँ जहाँ आपको इंग्लिश में डिफ़िकल्ट वर्ड्स परेशान करते हैं तो उसके लिए आपके पास डिक्शनरी है. छोटी डिक्शनरी है, पॉकेट डिक्शनरी है, बड़ी भी डिक्शनरी ले सकते हैं. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपने आप ही वर्ड्स डिफ़िकल्ट ढूंढने हैं, उनके मीनिंग ढूंढने हैं, और फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए जो उनके मीनिंग क्लियर हो जाए. एम आई राइट मैम? Yes, and then what we do in class 5 is that we pick up 2-3 words which we have given for them to find out the meaning of from the dictionary, plus we pick up 2-3 difficult words which are printed already in the book. So about 5 or 6 words are given, and the child has to form her own sentences, and they can change the tense of the word given, but the sentence should be grammatically correct. In case it is not, then of course we are there to guide the child. Apart from this, when the children are forming their own sentences and they're forming their own answers in class 5, the first step is that we tell them that the child should be able to form simple, short and correct sentences. How to form simple, short and correct sentences and also cover up all the points. So this is the essential part of class 5, because in class 6 they'll be forming their own answers again, but they'll be lengthier. So this is the baby step we take towards making them independent. मैडम पोइट्री के लिए कुछ कहेंगे? पोएम्स भी हैं फर्स्ट टर्म में? फर्स्ट यूनिट में पोएम्स हमने नहीं रखी हैं. वी हैव नॉट केप्ट द पोएम्स इन द फर्स्ट टर्म, एंड बट येस, poems is a different ball game altogether. It has to be taught in a very different way, and we'll save the poems for the normal times, because poems require one-to-one interaction with the students. जी, तो आपको अब थोड़ा सा स्टेप्स नज़र आने लगे होंगे कि किस तरीके से आप 5th क्लास की इंग्लिश को हैंडल करेंगे. खुद गाइड देंगे, गाइडलाइंस देंगे, और साथ ही साथ लाउड रीडिंग कराएंगे अपने सामने अपने बच्चों को, और उसी से आधे से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी और बच्चे में रीडिंग हैबिट डेवलप होने लगेंगी. थैंक यू मैम. और अब चलते हैं हिंदी के पास. प्राइमरी सेक्शन को एक छोटा सा अलग समय दिया है, फिर 10th के पास चलेंगे. मैम हिंदी पढ़ाती हैं 1st to 5th. हिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हिंदी को लेकर सबसे ज़्यादा सोफिया में प्रैक्टिस भी होती है और बच्चों को अलग ढंग से पढ़ाया भी जाता है. जी मैम, आपका नाम? आई एम मिसेस सौरभ सोलंकी. जी मैम. सोलंकी मैम 1st to 5th हिंदी पढ़ा रही हैं. बच्चों को किस किस तरीके की परेशानियाँ आती हैं जो अब तक आपने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा होगा? वैसे तो अभी कोई ऐसी परेशानियां नहीं है, सिर्फ क्लास 1 हमारे लिए अभी नई है, जिसका इंट्रोडक्शन हमसे अभी नहीं हुआ है. पेरेंट्स भी नए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आप सिटी हलचल का धन्यवाद करती हूं कि हमारी आवाज़ आप उन न्यू पेरेंट्स तक पहुंचा रहे हैं. आपने पहल की है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद. थैंक यू मैम. और सबसे बड़ी बात है कि जब नए पेरेंट्स हैं, क्लास 1 के पेरेंट्स जो बिल्कुल नए हैं हमारे लिए, जिनका हमसे कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ और लॉकडाउन हो गया है, मैं चाहती हूँ कि उनको हम एक तरह का भरोसा दिलाएं, आश्वस्त करें कि हाँ, उनके बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा. हम उन्हें कितनी भी हमें मुश्किलें आएँ, चुनौती तो है ही हमारे सामने, कितनी भी हमें मुश्किलें आएँ, लेकिन हम हर प्रयास करेंगे कि बच्चों का कोई नुकसान ना हो. इसीलिए हमने फर्स्ट यूनिट में सिर्फ पुनरावृत्ति को आधार माना है, रिवीजन. जी, क्योंकि यूकेजी से जो मात्राएं बच्चे सीख कर आ रहे हैं, हमने उनकी बेस्ड, जैसे मात्रा लगाओ, एक शब्द में उत्तर दो, एक शब्द हर मात्रा के 5-5 शब्द लिखिए, खाली स्थान भरिए, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाओ, सेंटेंस बनाओ,
इस तरह की चीज़ें जो उसी से रिलेटेड हैं, सब उसी को हमने डिटेल में कर दिया। जैसे लैंग्वेज में है कि रंगों के नाम लिखिए, अब वहाँ पर यूकेजी में बच्चा सीखता है सफ़ेद, लाल, काला, पीला, लेकिन हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं। जैसे हमने सपोज हरा है, हमने अब समुद्री हरा, नीला है तो आसमानी, अलग थोड़ा सा और बढ़ के पेड़ों के नाम हैं, थोड़े नॉर्मल बच्चे सीखते हैं आम, केला, अब और थोड़ी बड़ी दूसरे बरगद, या हम उसको इस तरह से कर सकते हैं कि फल देने वाले, औषधि बनाने वाले। तो इस तरह से हम उन्हीं को डिटेल्स पर जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि फर्स्ट यूनिट तो ख़त्म हो चुका है, अब हमें अपना फॉर्मेट बनाना होगा। हम 4 टीचर्स हैं, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं एवरी वीक, और उसमें हम ये डिसाइड कर लेते हैं, हमारे जैसे 7 टॉपिक हैं क्लास 1 के लिए, तो एक शब्द में उत्तर, खाली स्थान भरो, शब्द अर्थ, इस तरह से कठिन शब्द हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं एवरी वीक, और उसमें हम ये डिसाइड कर लेते हैं, हमारे जैसे 7 टॉपिक हैं क्लास 1 के लिए, तो एक शब्द में उत्तर, खाली स्थान भरो, शब्द अर्थ, इस तरह से कठिन शब्द ढूंढो, मात्रा लगाओ। उसी तरह से फिर सेकंड ऑनवर्ड्स हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ब्लूप्रिंट जो हमारा एग्ज़ाम का बनता है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, और चारों एक ही तरह एक पैटर्न पर चलते हैं। उसमें सबसे पहले होता है पाठ को पढ़िए, रीडिंग हम करते हैं क्लास में, अब हम ऑडियो से करेंगे, ऑडियो क्लिप देंगे, रीडिंग हम करते हैं। मैडम एक एग्जाम्पल दे दीजिए कैसे ऑडियो करेंगे। जी हाँ, सिटी हलचल और सोफिया मैनेजमेंट का यही प्रयास है कि हम, इसलिए जैसा कि सिस्टर गेल ने कहा है, विटामिन डी में बच्चों को शिक्षा दी जाए। धूप में हम लोग खड़े हैं और आपके सामने लाइव डेमो है कि किस तरीके से फर्स्ट क्लास में बच्चे को ट्रैक पर लाया जाता है। जी पहली बार। जी मैम, सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मन की इच्छा, मनोवृत्ति जो होती है उनको चाहिए आनंद, एंजॉयमेंट। तो हमें सबसे पहले अपने पाठ को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है, ताकि हम उनका ध्यान अपने ऊपर आकर्षित कर सकें, बच्चा एंजॉय करे। और यही टाइम होता है बचपन, चाइल्डहुड भी गोल्डन पीरियड है, जिसमें हम बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाल सकते हैं, और यही एक समय है कि हम उन्हें पूरा ज्ञान दे सकते हैं। हम उनको इतनी वीडियो के द्वारा, जैसे आज मेरे हाथ में क्लास 4 की बुक है, मैं इसी का एक एग्जाम्पल देती हूँ। चैप्टर है विजयदशमी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे आपको बच्चों को, क्योंकि प्रस्तावना से रिलेटेड हम थोड़ा सा बोलेंगे। भारत त्योहारों और उत्सवों का देश है। हमारे देश में समय समय पर अनेक जाति और धर्म के लोग मिलकर अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार हमारे नीरस जीवन को सरस बनाकर हर्ष और उल्लास से भर देते हैं। हमारे मुख्य त्यौहार दिवाली, दशहरा, होली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस आदि हैं। दशहरे को ही हम विजयदशमी कहते हैं। ये हमारी भूमिका हो गई। अब इसके बाद हम दशहरे के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि उनका इंटरेस्ट उसमें आ जाए। जैसे हमने पूछा, श्री राम और रावण का युद्ध कितने दिन चला? दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? ठीक है। दशहरे के उत्सव पर दक्षिण भारत में कौन से वृक्ष की पूजा होती है? ये सब लाइन्स इसमें दी हुई हैं, जिससे डायरेक्ट 1 वर्ड आंसर बच्चा करेगा। उसके बाद हमारे सबसे पहले होता है कठिन शब्द, फिर शब्द अर्थ, खाली स्थान भरो, वाक्य बनाओ, एक शब्द में उत्तर, लघु उत्तर, और फिर विस्तार में उत्तर। किसने किससे कहा, सही गलत। तो क्लास वाइज हमारा ये बिल्कुल सेट होता है। 2 to 5th हमें कोई दिक्कत नहीं होती, और हम भी बहुत सधे हुए हाथों में से निकलते हैं। सिस्टर्स हमें समय समय पर ओरिएंटेशन से, सेमिनार से ये सब गाइड करती रहती हैं कि बच्चों कितना डेडिकेशन आपके अंदर है, और वही सब हम बच्चों में डालना चाहते हैं। और ये जो ये समय है चुनौती भरा, मैं समझती हूँ कि ये हम अपनी संस्कृति, समय का एक चक्र है जो समझिए कि वहीं पहुँच गया है जहाँ आश्रम व्यवस्था थी, जहाँ गुरु और शिष्य सिर्फ हम उनको एक काम दे रहे हैं और बच्चा उसको कर रहा है। शायद वो स्पून फीडिंग और रट्टाफिकेशन से बिल्कुल दूर हो गया है इस टाइम, और अपने आप भी मेहनत कर रहे हैं। और पेरेंट्स जिनको हम पूरे, हमारे पास हर स्तर का बच्चा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं, जो शायद हमसे भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको दुर्भाग्यवश उतना एजुकेशन नहीं मिल पाई, समय नहीं मिल पाया, कुछ एजुकेटेड नहीं है। तो हमें हर लेवल को लेकर चलना है। हमने अपने सिलेबस को थोड़ा इजी करके रखा है। पहले वो टॉपिक लिए हैं, जैसे लैंग्वेज की बात करिए, लिंग शब्द,
पर्यायवाची विलोम शब्द जो डायरेक्ट हम काम दे रहे हैं पेज नंबर से, बच्चा उसको कर रहा है। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद स्कूल खुल जाए तो उससे आगे चलें, तब तक हम वीडियो क्लिप भेज रहे हैं। और लकीली इस बार जो हमारी बुक्स लगी हैं कृति पब्लिकेशन, उनके सारे लिंक यूट्यूब पर भी हैं, वो लिंक भी हम भेज रहे हैं, जिससे हमें बहुत सहायता मिल रही है। और मैं समझती हूँ बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो रहा। और वैसे भी अनुशासन हमारे LKG में तो मैं नहीं कह सकती, बच्चा एकदम आता है उसको इतना नहीं हम सख्त कर सकते, लेकिन UKG से बच्चों में जो अनुशासन है और समय सारणी, समय का पालन करना हम बच्चों को शुरू से सिखाते हैं, जिससे ज़्यादा ज़रूरत है कि अध्यापिकाओं को टाइम टेबल का पालन करना हमारा और अधिक, मतलब इस टाइम हमारा ये है कि किसी ना किसी तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को दें और उनका कोई नुकसान ना हो। सुनने में अच्छा लगा ना? एक टीचर की खासियत यही होती है कि जब वो अपने लेसन्स के साथ आए, जब वो अपने कंटेंट के साथ आए, तो पूरी तैयारी के साथ आए। और पूरी तैयारी के लिए ये नहीं है कि टीचर ने एक बार पढ़ लिया तो फिर वो जीवन भर उसे ही पढ़ता रहता है, नहीं, उसे अपग्रेड करता रहता है। जिस तरीके से मैडम ने अपने अनुभव के आधार पर आपको हिंदी पढ़ाने का तरीका बताया है, अब आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि आप भी यहाँ से कुछ टिप्स लेकर अपने बच्चे के टीचर बनिए, साथी बनिए और उनको पढ़ने में सहयोग करिए। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द हैं, लिंग वाले शब्द हैं, विपरीत अर्थों वाले शब्द हैं, इन सब को आप याद कराइए। ऐसे ही इंग्लिश में सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इनको याद कराइए। और फिर हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को लेकर सिटी हलचल का एक अलग व्यू है कि उन पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, उनको क्रिएटिविटी पार्ट पर लेकर आना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर आजकल बहुत न्यूज़ में है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था 5th और छोटी क्लास के बच्चों के लिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद 5th से सीधा 10th मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।